लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक याचिका 28 जनवरी को दाखिल की गई थी। इस बीच ममता रविवार को दिल्ली स्थित बंग भवन पहुंची, जहां उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए या उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कड़ा संदेश देते हुए कहा वो बंगालियों को प्रताड़ित करने की हिम्मत ना करे। দেখুন, এটা খুব স্যাড। সকাল থেকে বঙ্গভবন এবং আমাদের দুটো বঙ্গভবনে সেন্ট্রাল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। দেখছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে। এটা ওরা করতে পারে না। They don't have any right to search room to room in Bangabhavan. That which people are staying from Bengal. This is our Bhavan. And you will appreciate 150 people died because of SIR. And their family members, out of that, few family members came to raise their voice. And there are some people who are alive. But SIR case, Election Commission declared them for death. They have died. On protest of that, they came to raise their voice. If they are permissible, we will appeal. Then they can go, they can meet some people. But don't think that they will give us the guidelines for the agitation. We know there are some institutions, judiciary, election commission, where we can raise our voice. And if they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else, because we born and brought up from the struggle. So I am going to Bangabhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. And when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people who have lost their lives, their family members against their family members. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. This is for your kind information. Now I'm going to see the Bangabhavan only to give the assurance that please be safe and sound. Because they came to meet Delhi press. They will meet you tomorrow. They will show you that how they have been tortured. Don't you think media have the right to know? Tomorrow 3 o'clock there is a meeting. Media has been called. There is a press conference in Bangabhavan. So there will be invited. So that you can meet the people. Because Delhi people doesn't know what they are doing in Bengal. Always they used to defend the Bengal. But they do not know what torture they are doing on. And that's why just now I got the information. And I didn't change even my clothes. I'm just going as a house staying. And Abhishek was also used to do something work. I said, let go with us. So I'm going to Bangabhavan. असम विधानसभा चुनाव 2026 के पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संभावना तलाशने तिनसुकिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम में आप लोगों की संख्या 1/3 है। इन लोगों ने बड़ी शातिर तरीके से फूट डालो राज करो की नीति के तहत आप लोगों को बांट रखा है। 1/3 जो मुझे बताई गई है, इतनी बड़ी ताकत
आप लोगों का है। और यही ताकत को इन लोगों ने बड़ा तरीके से एसटी और आदिवासियों में बांट रखा है। कोई टी ट्राइब्स, कोई आदिवासी, कोई क्या क्या। तो ये लोग, जो मैंने पहले कहा फूट डालो राज करो का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख के आए। आप ही के बीच में से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा पैसा देके, क्योंकि पैसा जो ना कराए। पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क हिला देता है, एजेंट बनाएगा लोगों को और हमारे समाज के बीच में लोगों को बिखेरने का काम करेगा। आज हमें मौका मिला आपके बीच में आने का और हम कोशिश करेंगे, जो आप लोगों की व्यथा है, जो आप लोगों की तकलीफ है, इस तकलीफ को खत्म करने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। हमने तो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से यही सीखा। अगर आपने कोई भी कार्य ईमानदारी से करना प्रारंभ किया, वो काम निश्चित होता है। यहां तो कई उदाहरण है, लोग अकेला व्यक्ति पहाड़ काट करके रास्ते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रदेश के लिए काला दिवस करार दिया। उन्होंने कहा, 15वें वित्त आयोग तक हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा, लेकिन 16वें वित्त आयोग द्वारा इसे बंद करना छोटे और पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय और संघीय भावना पर प्रहार है। सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि बजट में ना तो राज्यों के लिए ब्याज ऋण मुक्त की राशि बढ़ाई गई और न ही ऋण सीमा 3 से 4% करने की मांग मानी गई। अब 16 फाइनेंस कमीशन ने, जो कि लोन की लिमिट भी तय करता है, 15 फाइनेंस कमीशन ने लोन की लिमिट भी तय करता है। जो हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोन लेते हैं उसकी लिमिट भी फाइनेंस कमीशन तय करता है। और जो ये लिमिट तय की जाती है वो स्टेट की जीएसडीपी, जो जीएसडीपी होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, उसके आधार पर की जाती है। हमने ये भी मांग की थी कि उस लोन की लिमिट को अब 3% से बढ़ाकर 4% की जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर 3% ही रखा है। अब जिस प्रदेश में 90% लैंड शिवालिक्स, मिड हिमालय और हिमालय में बटी हो, छोटी पहाड़ियाँ, उससे बड़ी पहाड़ियाँ और बड़ी मध्यम पहाड़ियाँ और बड़ी पहाड़ियों में बटी हो, वहाँ इंडस्ट्री सिर्फ प्लेन इलाके में ही आ सकती है। जैसे बद्दी का इलाका हो गया, कालाम का इलाका हो गया, पोंटा का इलाका हो गया, उन्ना का या कांगड़ा का इंदौरा बेल्ट का इलाका हो गया। 10% लैंड है जहाँ हम इंडस्ट्रियल बेल्ट हम बोल सकते हैं, वहीं आती हो। बड़ी इंडस्ट्री से हमें, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है और अदर इंडस्ट्रीज़ है दूसरे उद्योग से, बैट के और एक्साइज के रूम में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए के करीब आता था। जीएसटी लगने के बाद से भी प्रदेश को नुकसान हुआ। जो हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स लगाने की जो पावर थी जीएसटी के बाद, वो ख़त्म हो गई। हम किस पर टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद वो शक्ति भी हमारे हाथ से चली गई। हमारे जो अधिकार है, जो जनता की संपदा के अधिकार है, जो 75 लाख जनता की अधिकार है, वो सरकारों के अधिकार नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार सत्ता में आती है, सरकार सत्ता से बाहर जाती है, लेकिन अपने अधिकार जो हैं, जो आम आदमी के अधिकार है, जो प्रदेश के बागवान के अधिकार है, जो प्रदेश के किसान के अधिकार है, जो प्रदेश के आम परिवारों के लोगों के अधिकार है, अगर उस संपदा को आप लूटते ही रहोगे और हमारे लोगों को ना कोई अधिकार दोगे, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए काला दिन है। उस अधिकार के रूप में हमें ये आरडीजी मिलती थी। आप
सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।